Okay, let's start the class, students. We have already started with the accounting equation. Is it visible? The board is visible to you properly? Students, is it visible properly? I ask. Yes, sir. Yes, sir. This content is the standard. Okay. 12th में भी journal entries. Practicing how to record these transactions in accounting equations. Not record, how to give the effects. So like yesterday I have explained you, no fixed format is there, but it can be designed in such way so that it can be understand how it happened. We'll conclude it fast, students, because it is not very difficult. If you are finding any difficulty, you can tell me. So like yesterday we were doing, we would be practicing today also. We would be taking some transactions. We would be giving the effects of it so that we can understand that assets would be always equal to liabilities and capital. What is the purpose of accounting equations? To develop a strong approach on this, that the debit is always equal to credit. Debit is always equal to credit, or asset is always equal to liabilities plus capital. So everyone whosoever in the class, make sure that you think about the transactions, you think about the transaction, a business financial transaction, okay, and that we are going to give the effect, that we are going to put on this axis, that whether it whether it again make it balance or it just make it imbalance. Hopefully you are able to understand. Okay, so one transaction I'm just taking, that is, business started with bank loan. Business started with bank loan, that is 1 lakh rupees. So business started with a bank loan. So one side bank is getting cash of rupees 1 lakh. On other side, one liability named bank loan. Bank loan is there of 1 lakh rupees. Since no capital is introduced, capital is zero. Hence, asset is equal to liabilities plus zero capital. Okay? Yes, please. Now, whatsoever the books you have, whatever the book you have, just take some transactions, find out some transaction, and we would be working on it. Well, understand this how accounting equations remain balanced by giving effects of any business transactions, any financial transactions, not business transactions, any financial transactions. If it is recorded according to the double entry system. Am I audible to all? आवाज आ रही है properly? Yes, sir. Okay. चलिए, कोई transactions लें students जो भी आपकी बुक में दिखाई दे रहा है, और any transactions you can just think about. Let's say everyone, starting from Naman, think all of you one transaction at least. Yes, Naman. So purchase of goods. Okay. Purchase of चलिए ठीक है. Mohit has stated purchase of good. Purchase of goods. ठीक है.
Do you want to add anything else in this, Mohit? Sir, of 20,000. चलिए ठीक है, करते हैं उसको, है ना। बेटा ये कौन है आईफोन? सभी लोग ध्यान दो कि आप जब भी ज्वाइन कर रहे हो तो अपने नाम से ज्वाइन करो, है ना। आई विल नॉट गिव यू द एंट्री बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंड। हु इज दिस आईफोन? ही इज नॉट इवन स्विच ऑन द माइक, सो नॉट एबल टू हियर। आई एम जस्ट, हाँ नहीं किया ना उसने। यस, हु इज दिस? ओके बेटा ये आईफोन, हु इज दिस? वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम? आर यू एबल टू हियर? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। Yes, sir. उत्सव नाम है। उत्सव इज देयर इन द क्लास? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी आज तक नहीं आया है सर। ठीक है, रिमूव। सर यस बोला था उसने। Sir, he is Okay. new to the class. हाँ, आई हैव रिमूव्ड हिम। चलिए ठीक है ना। सभी लोग हैं लगभग, मेरे ख्याल से 10-12 स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखो बेटा अपना, है ना। क्लास अभी अपन लोग जब भी ज्वाइन कर रहे हो तो अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करें, है ना। रिद्धि अग्रवाल, रिद्धि अग्रवाल इज देयर इन द क्लास? Yes, sir. यस यस रिद्धि, rarely join, so I don't recognize you. Please join regularly. Yes, sir. Okay, let's start. So अभी अपन एक ट्रांजैक्शन लेते हैं मोहित, जैसा अभी इसने उत्सव ने बताया कि परचेज गुड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन उसको क्रेडिट में बाइफरकेट करते हैं और सारी कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। इट इज विजिबिलिटी, हाँ ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, as Mohit has stated, purchase goods for rupees 5,000. No information is there, only this information is there. So everyone try to understand, है ना। देखो अपन इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करने वाले, ये बहुत सिंपल सी चीज है, प्लस माइनस करने हैं। We need to understand that asset is always equal to liabilities plus capital, debit is always equal to credit. तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको समझेंगे, maybe today or tomorrow, and we'll switch to the next topic, है ना। क्योंकि आगे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली चीजें, ये सिंपल सी चीजें, ठीक है। तो परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000, तो भी हमने 5,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है। नाउ नो डिस्क्रिप्शन। देखो एक समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि ओनली इट इज रिटन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000। अब दो चीजें, पहली बात तो इसमें कैश का डिस्क्रिप्शन नहीं है ना। नो डिस्क्रिप्शन अबाउट द कैश के मतलब, हाँ आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट, है ना। सिंस नो डिस्क्रिप्शन इज देयर वेदर द गुड्स इज परचेज्ड फॉर कैश और क्रेडिट, मतलब नगद में खरीदा है कि उधार में खरीदा है, तो कैश का डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक और पॉइंट इज नॉट गिवन देयर, दैट इज फ्रॉम होम। देखो अगर उधारी में कुछ भी खरीदा जा रहा है, वी आर गोइंग टू बाय समथिंग ऑन द क्रेडिट, तो डेफिनेटली हमें ये तो पता होता है ना किससे खरीदते हैं। मोहित बेटा आपने ये ट्रांजैक्शन दिया परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000, तो ठीक है। अगर इन्होंने बताया होता कि परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000 फ्रॉम राम, तो हम उसको उधारी में मान लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, देन हम उसको उधारी में मान लेते हैं। लेकिन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000 ओनली इट इज रिटन, सो दो द कैश इज नॉट देयर, बट हम लोग फिर भी समझेंगे कि इसको कैश में खरीदा गया है। प्लीज माइंड इट, अंडरस्टैंड इट। अब इसमें दो लर्निंग आउटकम्स है। परचेज्ड गुड फॉर क्रेडिट लिखा होगा तो क्रेडिट मनी, हाँ वो तो फिर क्रेडिट, तो फिर अपन क्रेडिटर में डाल देंगे, है ना। या तो क्रेडिट का डिस्क्रिप्शन हो या फिर कैश का डिस्क्रिप्शन हो, और कैश क्रेडिट डिस्क्रिप्शन नहीं है तो जिस पार्टी से हमने उधारी में खरीदा है या फिर जिस पार्टी को हमने उधारी में बेचा है, दिस विल हैव टू मींस वी नीड टू हैव द नेम ऑफ दैट पार्टी। ओके, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर कैश कंसीडर करेंगे कि हमने 5,000 का गुड्स कैश में परचेज किया है। नाउ सिंपल गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स इज अगेन असेट्स, assets increase in the debit, decrease in credit. Cash is also assets, yes, increase in debit and decrease in
क्रेडिट मतलब जब दोनों असेट्स हैं तो एक असेट्स कम हो रही है और एक असेट्स बढ़ रही है ना। यहाँ पर हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है प्लस माइनस बताने की, हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि भाई गुड्स खरीदा है, स्टॉक परचेज किया है, तो 5000 रुपीज का स्टॉक प्लस हो जाएगा और 5000 रुपीज कैश में से माइनस हो जाएंगे। लेकिन हम साथ में रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट भी पढ़ रहे हैं सो दैट वी वुड बी एबल टू स्टार्ट फर्दर। So one side, one asset is increasing, that is goods, so we have add one asset, and another side, one asset is decreasing, so we have decreased the cash. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? Students, are you able to understand? हाँ सर। है ना, देखिए, be very clear with this. यहाँ पर ये बहुत छोटी-छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये समझना है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट दोनों साइड हो जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब असेट साइड भी हो, लायबिलिटी और कैपिटल साइड भी जरूरी नहीं है, लेकिन उसके डबल इफेक्ट जरूर होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। कहने का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इफेक्ट केवल असेट साइड में है ना, लेकिन उसके इफेक्ट दोनों साइड में। हाँ, अगर असेट्स डिक्रीज हो रही है मतलब क्रेडिट हो रही है, असेट्स इंक्रीज हो रही है मतलब डेबिट हो रही है ना, तो बोथ इफेक्ट्स तो हो रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। ये जरूर है कि केवल असेट साइड में या केवल लायबिलिटी साइड में हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल इंपैक्ट बोथ द एस्पेक्ट्स दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये केवल मैंने इंडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है यहाँ पर, है ना। सो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। अब इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लायबिलिटीज और कैपिटल पे नहीं गया, हम इसको जीरो कर सकते हैं, है ना। ऐसा लिखेंगे तो माइनस लगेगा वो। So now what is the new accounting equation? Now what is the new accounting equation? So 1 lakh का कैश था, 5000 का गुड्स हमने खरीद लिया, so now cash is there of only 95,000 plus 5,000 rupees of stock. Now as it is 1 lakh rupees of liabilities and zero capital. Okay, any other transaction suggest anyone? Sir, sold half the goods at a loss of Yes. 10%. Sorry beta. Sir, sold half the goods at a loss of 10%. ठीक, चलो, है ना। अपन इस तरह के ट्रांजैक्शन पर भी आते हैं, लेकिन थोड़े से पहले सिंपल से ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे ये हमने असेट्स, लायबिलिटीज और ये सारे तो पढ़ लिए, अब अपन एक स्टेप आते हैं जिनके इंपैक्ट कैपिटल पर होते हैं डायरेक्टली, है ना। स्टेप बाय स्टेप आई विल आल्सो एक्सप्लेन दिस ट्रांजैक्शंस, आई अप्रिशिएट यू, है ना। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस जिसके डायरेक्ट इंपैक्ट कैपिटल पर, डायरेक्ट इंपैक्ट आपने जो बताया उसका भी इंपैक्ट कैपिटल पे होगा कि हमने आधा गुड्स अगर लॉस में सेल किया है तो उसके कारण हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, है ना। तो हाल फिलहाल में तो कैपिटल है ही नहीं, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए और कोई ट्रांजैक्शंस अपन लेते हैं, एनीवन। सबसे पहले अपन इसमें कैपिटल ऐड कर लेते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन दिया, किसका बिजनेस है, जैसे इसकी राम का बिजनेस है, राम्स बिजनेस। सो राम हैज So इंट्रोड्यूस्ड we can write The additional transaction capital of 20,000. yes please speak up. Sir, we can write rupees 10 lakh introduced by proprietor in the business as Yes. additional capital. Yes, ठीक है ना। Additional capital will not call it the additional capital because so far no capital is there. ठीक है, business is running on the loan only. So let's say the Ram, the proprietor has invested money to the business rupees, let's say 50,000. ठीक है, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो 50,000 रुपीज का कैपिटल राम जो ओनर है उन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। अब वी नो वेरी वेल द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर द टू सेपरेट एंटिटीज। तो 50,000 रुपीज बिजनेस के पास में आ रहा है ना। सो कैश, बिजनेस इज रिसीविंग अ कैश ऑफ रुपीज 50,000, है ना। सो 50,000 रुपीज इज एडेड इन कैश। चौंक लाओगे चौंक। So 50,000 rupees would be added to the cash. Cash में 50,000 ऐड हो गया। अब ये 50,000 देखो एक एस्पेक्ट है कैश इंक्रीज हो रही है,
अगर डेबिट में कैश इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इफेक्ट कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। अगर ये कैश इंक्रीज हो रही है डेबिट में, अगर डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट डिक्रीज हो रहा होगा, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। ये 50,000 कहां से आया? ओनर ने दिए सर कैपिटल। है ना, कैपिटल है, ओनर ने दिए। तो ओनर ने क्यों दिए? हमने बैंक से लिया तो उसको लोन माना, है ना, बिकॉज बैंक को वापस देना पड़ेगा। हमने लोन क्यों माना उसको बेटा? हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीस, सो दिस 1 लाख रुपीस इज वन साइड ऑफ आवर कैश एंड अनदर साइड ऑफ कॉइन इज व्हाट? इट इज लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया तो वापस भी तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही 50,000 रुपीस ओनर ने भी बिजनेस में लगा दिए हैं, लेकिन ओनर अपना पैसा वापस भी मांगेगा प्लस प्रॉफिट भी मांगेगा कि आई हैव इन्वेस्टेड 50,000 रुपीस, सो व्हाट इज माय रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग? आपने पढ़ा है ना 11th बिजनेस स्टडीज में, द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। तो 50,000 ही हैज इन्वेस्टेड। तो कंसीडरिंग द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस के लिए कैपिटल भी लायबिलिटी है। प्लीज माइंड इट, लिसन इट वेरी केयरफुली। मे बी यू थिंक इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, लेकिन इसको ध्यान से समझें सभी लोग कि फॉर बिजनेस कैपिटल इज आल्सो अ लायबिलिटी, but not liabilities toward outsider, it is internal liability. So instead of calling it pure liability, it is called owner's equity or owner's liabilities. This is capital. Hopefully it is clear students. So एक साइड assets हमारी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड कैपिटल इंक्रीज हो रही है। So here debit increases, credit also increases. Again debit is equal to credit. Our accounting equation is balance. Our accounting equation is balance. अच्छा, एक अभी तो इसके पहले somebody has suggested कि कैपिटल नहीं है तो लॉस नहीं हो सकता क्या? लॉस हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता? अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है? इम्बैलेंस हो जाता क्या? कोई बताए मुझे जल्दी से। तो कैपिटल में पहले से ही माइनस में चला जाए। नहीं, कैपिटल तो जीरो बैलेंस था। अब अगर मान लीजिए गुड्स उसके बाद अगर उसको लॉस में सेल कर देते तो फिर क्या होता? क्या अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाता है क्या? नहीं, थिंक इट। नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन फिर भी बैलेंस है। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर भी बैलेंस रहता। वो जो लॉस हो रहा है, since no capital is there, so that would be considered as a capital, that would be considered as a loss, and the loss would be carry forward. अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, इस साल नहीं तो अगले साल राइट ऑफ होगा, है ना। हम उसको आगे समझेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कुछ कंसेप्ट कैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि इवन इन केस ऑफ नो कैपिटल द लॉस कैन बी रिकॉर्ड। ओके, चलिए 50,000 रुपीज ऑफ कैश रिसीव्ड एज अ कैपिटल। तो पहले हमारे पास 95,000 का कैपिटल था, कैश था, तो 95 प्लस 50,000 अब बढ़ गए, कैश हो गया 1,45,000 का। 5,000 का स्टॉक अभी भी रखा हुआ है। 1 लाख रुपीस की लाइबिलिटीज बैंक को अभी भी देना है, और एक नई लाइबिलिटीज भी बन गई है 50,000 रुपीस की, जो कि ओनर्स को पे करना है। So it is internal liabilities. Now you see this again. Accounting equation is what? Balance. 145 plus 5, that is 1,50,000, and 1 lakh plus 50,000 is equal to 1,50,000. Debit is again equal to credit. So students, the main purpose, since you are studying commerce, accounts, first and 11th standard, so accounting equation chapter में इतने starting में क्यों ऐड किया गया? कोई मुझे बता सकता है इसका रीजन? है ना, बहुत सारे लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को बाद में पढ़ाते हैं, लास्ट में, है ना, कि ये तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा, और पहले तुमने अगर सारी चीजें पढ़ ली तो ये आपको बाद में बहुत इजी लगेगा, है ना। वो स्टार्टिंग में पढ़ाते ही नहीं, लास्ट में पढ़ाते हैं। यस प्लीज, एनी स्टूडेंट्स टेल मी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम छुपा हुआ है। यस, एनी स्टूडेंट? आवाज आ रही है मेरी सभी को? बताओ बेटा, क्वेश्चन फिर से बोलूं?
हाँ सर। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जस्ट स्टार्टिंग में है ना, न्यूमेरिकल स्टार्ट होते से ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर क्यों रखा गया? बोर्ड ने क्यों डिसाइड किया कि आपको स्टार्टिंग में ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आना चाहिए कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट? ये स्टार्टिंग में ही क्यों ये चैप्टर रखा गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर आप स्टार्टिंग से रिलेट कर पाओ और प्रैक्टिस हो जाए। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलो मोहित। सर प्रैक्टिस हो जाए और आप स्टार्टिंग से चीजें रिलेट कर पाओ इसलिए। हाँ, सेकंड पार्ट इज वेरी करेक्ट कि स्टार्टिंग से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं, है ना? प्रैक्टिस तो फिर हो ही जाएगी व्हेन वी वुड बी लर्निंग इट। मतलब द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव ये है कि बीइंग अ न्यू लर्नर, है ना, being a newcomer, you can have a concrete approach with this debit and credit की जो accountancy में जो चीजें हैं वो इस एक्सेस पर चलती है कि the debit would be always equal to credit, it will never get imbalance। और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कोई सी भी ट्रांजैक्शंस उठा लें, जैसे भी आपने बताया कि वो गुड्स लॉस वाला ये हो गया या कोई भी ट्रांजैक्शंस, है ना, any of the transaction, instead of doing the questions whatever is given, think practically कि मैंने suppose I have purchased this, I have sold this, I have done this, I have done that, everything you try to apply and find out that in all the circumstances debit would be equal to credit. So what will happen? A strong approach you would be having that in all the circumstances debit would be equal to credit and it is not going to imbalance ever. So what you would be able to understand it, you would be able to interpret it in such way and further you can develop your own theories on this. ये क्या क्या हो सकता है? In case if we have only liabilities and capital, so we can find out the asset. If we have asset and liabilities, so we can find out the capital. If we have been given the asset and capital, so we can find out the liabilities. So you can correlate the things. This is only the purpose. But ये कब हो सकता है? When you have a strong approach with this, yes, debit is equal to credit in all the circumstances. अच्छा, अंडरस्टैंडिंग के साथ में एप्लीकेशंस भी आना जरूरी है। ठीक है, मान तो लिया हमने बात की डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन हाउ इट विल हैपन? How assets will increase and decrease would be recorded in asset side. How liabilities increment and decrement in the liabilities would be recorded in the liability side. How capital increase and decrease in capital would be recorded in the capital, as well as expenses, losses, revenue and gain would be recorded in the capital. Okay? So this you need to understand, then only you would be able to correlate the things. Hopefully you are clear with this approach. Now students, let's say a transaction, salary paid rupees 5,000, एम्प्लॉइज को हमने 5,000 रुपीज का सैलरी पे किया। क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं इसके? थिंक अबाउट इट, सोचिए कोई। आई हैव गिवन द ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज हैपनिंग? डोंट टेल मी द डायरेक्ट इम्पैक्ट सर इसको इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। नहीं, मुझे बताओ कि एक्चुअली ट्रांजैक्शंस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। यस, एनीवन इन द क्लास? Am I audible? Can you repeat once? My question is, beta, my question is salary paid rupees 5,000. So first of all, what is the transaction and what would be the impact on the business and how to adjust in accounting equation? Yes, please, Yashika. Our salary is our expense for the firm, and we are paying it in cash. So from assets, cash will be from cash. The salary amount will be deducted. Okay, right. If you are paying salary, so if you are paying salary in cash, then definitely cash will go out from the business. Cash will go out from the business. Cash decrease हो रहा है, तो हम लोग cash को decrease करेंगे. On other side, salary is what? Expenses. Okay.
एंड ड्यू टू सर एक्सपेंसेस व्हाट विल हैपन? एक्सपेंसेस कैपिटल में से कम होते हैं। क्यों होंगे बेटा कैपिटल में से कम? मोहित, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ टेल मी, हम क्यों उसको कैपिटल में से कम करेंगे? Sir, हाँ, because yes. the money introduced in the capital, from it expenses will be deducted. Expenses are deducted from the capital introduced. नहीं तो क्यों करेंगे याशिका, मैं वही पूछा। आपका आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट माय क्वेश्चन, आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द फैन सो दैट आई कैन हियर यू क्लियरली कि हम उसको कैपिटल में से क्यों माइनस करेंगे? यस, एनीवन? या अगर रेवेन्यू है तो हम कैपिटल में क्यों प्लस करेंगे? जल्दी से बताइए बेटा। जो रेवेन्यू होता है वो सीधा प्रॉफिट के तौर पे वो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसके पास जाता है। ठीक, देखिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एंड as we know very well कि बिजनेस में a businessman has invested 50,000 rupees to the business. बिजनेसमैन ने 50,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, so why businessman has invested this 50,000 rupees? What is his reward? उसको ये इन्वेस्टमेंट करने से क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट, है ना? कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, ठीक है ना? If anyone is doing the business, so the primary objective, जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है कि बिजनेस इज हैविंग द 3 ऑब्जेक्टिव, बट उसमें सबसे पहले कौन सा है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना? फिर बाद में सोशल ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो सब अपनी जगह पर है, बट पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो बिजनेस पैसा कमाने के लिए है, फिर बाद में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो कि हमें हमारे क्षेत्र के लिए भी काम करना है, लोगों को रोजगार भी देने हैं, सब कुछ है। फर्स्ट अबाउट द मेकिंग प्रॉफिट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट, a person start a business to make profits, and don't you think that it is all expenses, salary, है ना, salary, electricity bill or any other expenses, profit is what? Revenue minus expenses. अब ये जो प्रॉफिट होगा हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं, बिकॉज द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ ओनर। प्रॉफिट इज व्हाट? द रिवॉर्ड ऑफ ओनर। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो उससे बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ जाएगा। बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, ठीक है? तो अगर ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दैट द प्रॉफिट विल डिक्रीज? एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा मतलब कैपिटल कम होगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देखिए आपको पता है उसको कैपिटल में से कम करते हैं, लेकिन कम क्यों करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, है ना? वो चीजें हमें आगे, है ना, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं आपको, है ना? आई कैन डायरेक्टली टेल यू कि सैलरी को क्या करना है, कैश में से कम कर दो, कैपिटल में से कम। कमीशन रिसीव्ड, 10,000 का कमीशन रिसीव हुआ है, क्या करना है, कैश में बढ़ा दो, कैपिटल में बढ़ा दो। बट क्यों, व्हाई? इसका आंसर हमें पता होना चाहिए, तब तो हम सीख रहे हैं, नहीं तो फिर हम लर्न कर रहे हैं, है ना? बस केवल कि हाँ इसको ऐसा ऐसे करना है। So this 5,000 rupees minus from the cash because we are paying the salary, and also from the capital because the salary is the expenses, and expenses will reduce the profit. Expenses will reduce the profit, and if it is reducing the profit, ultimately it will reduce the capital. Ultimately it will reduce the capital. Profit increase the capital, losses decrease the capital. Profit is the reward of owner. देखिए बिजनेस में ओनर का जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है? बिजनेस जो भी कमाता है ओनर को, बिजनेस को जितना भी प्रॉफिट होता है ओनर को मिलता है, बिजनेस को जितना भी लॉस होता है वो ओनर बेयर करता है।
तो separate entity concept, students, please mind it. Separate entity concept is only for accounting point of view. है ना? Separate entity concept is only for what? Accounting point of view. Accounts बनाने के लिए business अलग है और businessman अलग है. Business अलग है और businessman अलग है. Otherwise, business का profit, owner का profit. Business का loss, owner का loss. Am I clear? Is this concept clear to you? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में थोड़ा सा अलग है, लेकिन अप्रोच सेम है स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड इट, है ना? सभी में केवल ये सेम, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में भी सेम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी सेम है, सभी में ओनली फॉर द अकाउंट, सॉरी, पूरा पार्टनरशिप फॉर्म का एक ही बनेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट सभी के अलग अलग होंगे। भाई अपन दोनों लोग पार्टनर है बिजनेस में, मेरा कैपिटल अलग है, तुम्हारा कैपिटल अलग है। बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा, मेरे हिस्से का प्रॉफिट मुझे मिलेगा, आपके हिस्से का प्रॉफिट आपको मिलेगा, है ना? पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली पार्टनर्स को प्रॉफिट है। फॉर्म को लॉस है, अल्टीमेटली पार्टनर्स को लॉस, ठीक है? सो एक्सेप्ट द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उसमें भी क्यों है, क्या है, वो एक हम रीजन के साथ में डिस्कस करेंगे, है ना? वो 12th में आएगा, आपको 12th में भी आएगा, लिटिल पोर्शन इज देयर इन द 11, बट अल्टीमेटली ये अप्रोच आपको समझना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली बिजनेस एंटिटी और द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट इज ओनली फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंट्स बनाने के लिए ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, अदरवाइज बिजनेस का प्रॉफिट, ओनर का प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस, ओनर का लॉस। तो अगर बिजनेस सैलरी दे रहा है, मतलब कि ओनर का प्रॉफिट कम होगा, इसलिए कैपिटल में से कम हो रहा है, ठीक है? अगर कमीशन मिल रहा है 10,000 रुपीज कमीशन रिसीव्ड, सो दिस इज 1,40,000 प्लस 5,000, दिस इज 1,00,000, नाउ 45,000। देखिए अभी प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, 5,000 की सैलरी देनी पड़ गई, मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस तो हो गए, रेवेन्यू तो फिलहाल हुआ नहीं है, रेवेन्यू तो हुआ नहीं है, मतलब कि बिजनेस को 5,000 का लॉस है। बिजनेस को जैसे ही लॉस हुआ कि ओनर का कैपिटल 5,000 रुपीज से कम हो गया। ऑन अदर साइड कमीशन रिसीव्ड रुपीज 10,000 का कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो एक साइड हमने कैश में प्लस किया, दूसरी साइड दिस इज द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, तो 10,000 रुपीज से कैपिटल इंक्रीज कर देंगे हम। क्यों कर देंगे? क्योंकि अगर कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और अगर बिजनेस के लिए प्रॉफिट है मतलब कि ओनर के लिए प्रॉफिट है। अब ओनर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। Am I clear? कमीशन किस चीज का है? नहीं, लेस किसी भी चीज का है ना? I have just taken an example to make you understand all the revenues, है ना? All the revenues, though the commission may be indirect, है ना? Indirect और direct, वो हम उसके बारे में उसको बाइफरकेट बाद में करेंगे, समझेंगे। फिलहाल हमें केवल इतना समझना है कि ultimately the commission is a revenue for the business, salary is expenses for the business, revenue minus expenses, total 5,000 rupees of profit. You can see this कि कैपिटल 50,000 की थी, बाद में 5,000 का लॉस हुआ तो कैपिटल हो गई 45,000 की, 10,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, so now net capital is 55,000. Revenue minus expenses is equal to profit, that is 5,000 rupees of profit is there. Hence कैपिटल स्टार्टिंग में 50 का था, बाद में 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अब कैपिटल कितने का हो गया? 55,000। बिजनेस का प्रॉफिट, ओनर का प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस, ओनर का लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको? कोई क्वेश्चंस हैं इसमें तो बताइए। Do you have any doubts, query in this, students? नहीं। Yes, please. So now what we have to do, students? We have to practice with the different transactions.
हम काफी सारे ट्रांजैक्शंस को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस, हम इलस्ट्रेशंस में देख सकते हैं, है ना। जैसे आपने ट्रांजैक्शंस बताया था, हम यहाँ से ले लेते हैं इसको। See students, so many things are there. So many things are there, है ना। This is loan and capital 50,000. हमने अगर 50,000 fixed capital भी assume करके, so that what we would be having this fundamental approach. Now, goods rupees 2,500 sold at loss of rupees loss of 10%. जैसा कि किसी ने बताया था, अभी क्वेश्चन पूछा था कि हमने 2,500 का, या फिर इसको 2,000 मान लेते हैं कि 2,000 में गुड्स को 10% लॉस पर सेल, तो हमारे पास से 2,000 रुपीज का स्टॉक सेल हो रहा है। ठीक है, देखिए ये एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम समझो इस बात को कि हम जिन चीजों को जितने में खरीदते हैं उतने में ही सेल नहीं कर देते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस इज डिफरेंट, सेल प्राइस इज डिफरेंट, एंड वी जनरली ऑफर द डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2,000 का जो गुड्स था उसको हमने 10%, मतलब कि 2,000, इज इट विजिबल हियर? यस, 2,000 के गुड्स को 200 के डिस्काउंट पे 10% इज 200, 1,800 में सेल कर दिया। 2,000 is the cost, 200 is discount, and sold for 1,800। तो हमारे पास में क्या हुआ, 1,800 रुपीज का तो कैश आ गया। गुड्स हमारे पास में कितने का गया, 2,000 रुपीज का। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने 200 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर किया, मतलब बिजनेस के लिए तो क्या है, डिस्काउंट देना नुकसान, और नुकसान है मतलब हमारी कैपिटल 200 रुपीज से कम हो जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस स्टूडेंट्स? और इसी गुड्स को, है ना, अगर हम इसी गुड्स को 2,000 के गुड्स को अगर 3,000 में सेल कर देते तो कैश 3,000 से इंक्रीज हो जाता। कैश क्या हो जाता, 3,000 से इंक्रीज हो जाता।